So, hello students, let us start our today's solution of the questions. Question number exercise 14.2. In the previous video, we have solved this exercise, but we have to do two questions which were left by the previous video. So, the question first is fourth question of question number 4. So, let us do this question here. The question is x to the power 4 minus x minus z to the power 4. So this is the question. We will solve this question as I told you. You can solve this question like the previous question. Question number 3. Method will be same here. This will be x square whole square and it will be x minus z whole square and then square. Now a square minus b square formula can be implemented here. That's why it will be x square minus x minus z. This is a minus b and also a plus b. So x square plus x minus z whole square. This is a minus b and this is a plus b. Okay. Again we can break this one. So now again a square minus b square formula can be implemented here. Look like this, and this part can also be solved because here a minus b whole square formula can be written, and so that it will be x square minus 2xz plus z square. And what will be happen here? A minus b into a plus b. So it will be a minus b. So x minus x plus z. When we are taken here minus sign, and when we will take here the positive sign, then this will be x plus x minus z. And here in this bracket it will be x square plus x square is 2x square minus 2xz plus z square, and this can be cancelled out. So now it will be z and x plus x 2x minus z, and this will be 2x square minus 2xz plus z square. And this is the solution of this question. Okay. Question number 5. Question number 5 of 4th. As although we have solved this question by yesterday, but once again just try to explain. Just once again I would like to explain this question. So see question number 5th. Okay, question number 5th. A to the power 4 minus 2a square b square plus b to the power 4. So in the previous video we have solved this question. I explained this question by the method of a minus b whole square. This question can also be solved by the using middle term break. So here I am again try to explain this question by the middle term break method. So this will be ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका इंटू करें तो a4 और b4 आए, प्लस या माइनस करें तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर आए. तो इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर. अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a4 b4 आएगा एंड इधर b टू द पावर 4. तो टेक द कॉमन है इस दोनों में a स्क्वायर कॉमन हुआ तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये दोनों सेम है तो ये लिखा और ये दोनों भी वही नंबर है। तो आप लिख सकते हो आगे, आइधर आप इसको भी ब्रेक कर लो, इसको भी ब्रेक कर लो और इकट्ठा लिख लो, या फिर जैसे कि कल जो आया था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है तो वैसा भी आ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दोनों को ब्रेक कर दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसमें, और इसको भी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आपको सिंपल होगा, देखो ए माइनस बी 2 बार है तो आप ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख दोगे। फिर ए प्लस बी ये भी 2 बार है तो इसको भी होल स्क्वायर लिख दिया। और आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो ए माइनस बी ए प्लस बी और पूरे में होल स्क्वायर। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। आपके आंसर सेट में क्या है एक बार चेक करते हैं। आंसर सेट में है दोनों में अलग अलग होल स्क्वायर, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप छोड़ दो, यहीं पे आप आंसर्स लिख दो। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग 14.3 एक्सरसाइज लगाएंगे। 14.3 एक्सरसाइज एक सिंपल सा एक्सरसाइज है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसको करते हैं। एक्सरसाइज 14.3, तो कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन, तो डिवाइड करना है। कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट का ले लेते हैं। एज यूजुअल हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट लिया 28x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। एज जैसा आपको पता है इस नंबर को इससे डिवाइड करना है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 28x टू द पावर 4 और 56x। ओके, देखो नंबर तो डायरेक्टली क्रॉस हो गया, ये 1 और ये 2। 28 2 जब 56 होता है, आप इसको भी क्रॉस कर सकते हो, ये एक्स क्यूब आएगा, क्योंकि x टू द पावर 4 मतलब 4 बार x इंटू एक्स है तो 3 बचेगा, तो हमारे पास बचेगा आंसर में x क्यूब बाई 2। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस हैव क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज 8 कॉमन x क्यूब y क्यूब z स्क्वायर, x क्यूब y क्यूब z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y क्यूब x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर। तो x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर, पहले में था 8 x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर, तो y में स्क्वायर था ऐसे था। अब x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर है और x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब है, और इसको डिवाइड करना है 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर से, 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर से। तो सीधे सीधे रूल है, क्रॉस कर दो आप, 4 2 8 2। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर है। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचता क्या है, x क्यूब था तो एक x बचेगा, ये खत्म। यहाँ पे y बचेगा और इसमें से z। ओके, इसके बाद नीचे है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग थिंग्स है x प्लस y प्लस z। So this is the way to solve this question.
Okay, now we are going to solve the question number third. Question number third. Let us have the question fifth. Okay, so just take question number fifth of third. This is 96 ABC. 96 ABC 3a minus 12, 3a minus 12, 5b minus 30, 5b minus 30 upon 144 a minus 4 b minus 6. So this is the question. 96 ABC 3a minus 12, 5b minus 30, 144 a minus 4 b minus 6. So just see. Can we cross these numbers? Yes, we can cross. So I am taking here 48. Yes, why 48? 2s are 48, 3s are. Okay, after this, take the common. Now 2a, b, c. Here 3 is common from this number. So 3, just take common 3. And now it is a minus 4. And here 5 can be common. So this will be b minus 6. 3 a minus 4 and b minus 6. Now a minus 4 cancel out, b minus 6, 3 and 3. The remaining things are 2 into 5, 2 5s are 10, a, b, c, and this is the answer. So just go for the other questions. Question number 4. Divide as directed. Questions are again the same. Let us have second question of question number 4. This is not second, this is the third. 52 PQR, 52 PQR, P plus Q, Q plus R, P plus Q, Q plus R, R plus P, divided by 104 PQ, 104 PQ, Q plus R, R plus P, Q plus R and R plus P. So this is the question. 52 PQR, then P plus Q, Q plus R, R plus P, 104 PQ, Q plus R, R plus P. Straight away we can cross the numbers 104 and 52. This is 2 times. Now P can be cancelled here and P, Q and Q. Q plus R, Q plus R, R plus P, R plus P. The remaining things are R into P plus Q and here upon 2. Okay. Okay. Next question. Now just see question number 5th here. 5th first question. Y square plus 7y plus 10. Y square plus 7y plus 10 upon y plus 5. You can't cross this number in a straight way. इसको हम सीधे सीधे कहीं से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो हमको पहले इसका फैक्टर करना पड़ेगा ऊपर वाले नंबर का. मिड टर्म ब्रेक में जाएगा. ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, प्लस करें तो 7. तो आपको पता है 5 प्लस 2,
तो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5। y कॉमन ले लें तो y प्लस 5 बचता है, और यहाँ पे 2 कॉमन लें तो यहाँ भी y प्लस 5 अपॉन y प्लस 5। अब y प्लस 5 y प्लस 2 अपॉन y प्लस 5। y प्लस 5 कैंसिल हो गया, आंसर में आया y प्लस 2। ये था फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह के इसके सारे क्वेश्चंस हैं, पहले फैक्टर करना पड़ेगा फिर क्रॉस होगा। तो और क्वेश्चन लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी ले लेते हैं, जिसमें है m स्क्वायर माइनस 14m एंड माइनस 32 और डिवाइडेड बाई m प्लस 2। तो 32 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 32 चाहिए, प्लस माइनस में 14 चाहिए, 16 माइनस 2 लेंगे तो हो जाएगा। तो m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32 अपॉन m प्लस 2। m कॉमन तो m माइनस 16, 2 कॉमन तो m माइनस 16, m प्लस 2, m माइनस 16, m प्लस 2, m प्लस 2, m प्लस 2, m प्लस 2 कैंसिल, m माइनस 16 इज आंसर। तो मिड टर्म ब्रेक के पहले करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर इसको क्रॉस करेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फिफ्थ का, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाई p माइनस 1। तो फैक्टर करना है, पहले कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन हो गया क्योंकि 5 से तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 p माइनस 1। 5 को ऐसे ही छोड़ दें आप। अब इसका फैक्टर करें तो p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4। देखिए 4p माइनस 4p माइनस p, दोनों को माइनस माइनस है दोनों, तो माइनस का 5p बन जाएगा, और 4p में p मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p स्क्वायर। ओके, 5 ऐसे ही छोड़े, p कॉमन हुआ तो p माइनस 4, माइनस 1 कॉमन तो p माइनस 4, p माइनस 1। अब हमारे पास बचता है p माइनस 4 एंड इन दोनों में से एक और p माइनस 1, p माइनस 1, p माइनस 1, p माइनस 1 कैंसिल, 5 इंटू p माइनस 4 इज आंसर। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 39y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 अपॉन 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो यही 13 2 जा और 13 3 सा, y एंड y स्क्वायर एंड y क्यूब, तो 3y इसमें से कॉमन हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉमन हुआ तो ये नंबर हो जाएगा 25y स्क्वायर माइनस 49। नीचे है 2 इंटू 5y प्लस 7, ये 2 और ये 2 कैंसिल,
3y a square minus b square 5y square minus 7 square नीचे है 5y plus 7 5y minus 7 5y plus 7 upon 5y plus 7 cancel out 3y into 5y minus 7 is the answer. So hoping that this video is a little bit beneficial for you. To meet you soon in the next video. Till then, thank you.